कुछ रिएक्शन गाइस या चैट में कि okay. So hey there, I'm Karthik Mehta and I'm a full stack developer and currently I'm in third year from PIT Jaipur and co-founder of the Cybox community. Uh, and so today we are organizing our session on cloud computing. And it's over to you, Gorika. You can start your introduction. Hello everyone, am I audible? Yep. Good evening everyone. Myself Gaurika Parekh. I'm currently in second year PIT and I'm the captain of the AWS club. We are so excited to host Mr. Abhineet Saxena, a seasoned professional with extensive experience in the tech industry. Currently, he is working as a CSC at Atlassian. He has previously contributed his expertise at AWS and has been an active member and the community leader of the AWS. Don't miss this chance to learn from him, and it's over to you, sir. Thank you. So yeah, hello again. Hello everyone. Thank you so much, Gorika. Thank you, Karthik, for introducing me. It was a great introduction. So I'll just share my screen in a while. But before that, thank you so much to all the audience, to all the attendees today, like giving your time in the weekend, avoiding giving you a fake dopamine with Instagram reels, and here with me, like we're together here to learn something new. And I will make sure to I'll try to make this session as much as interesting so that you won't regret. वैसे भी कोई खास मूवीज नहीं है अभी मार्केट में. Okay, I'm just sharing my screen. Okay. Okay, can I just have a quick thumbs up if my screen is visible? Thank you guys. Okay, so my today's session is regarding introducing you guys with cloud computing, and this title is Kickstart Your Journey and Elevate Your Career in Today's IT Landscape. So there will be a lot of interesting things, lot of interesting, I would say, myths on which we are going to discuss so many things together. But before that, let me just also give my quick introduction again. So my name is Abhinit Saxena, and right now I'm working as a cloud engineer with Atlassian with Jira Cloud product. And before that, I was having around 4 years of experience working as a cloud support engineer in Linux team with in AWS only. And previously, I was having experience with one startup as a DevOps engineer. And I'm also a co-organizer of AWS User Group Jaipur, which you guys may be aware of, I hope. So you can just quickly scan this QR code if you want to connect with me on LinkedIn. I hope it is working. I have not tested it. Hi, it is working. So these are some of my sessions with my community AWS User Group Jaipur. What I have, like what we have organized. These are some glimpses. So पहले KYC कर लेते हैं. It's not like a Paytm की KYC, but just to know you guys, know your candidates. So can you just quickly type in the chats like in which year you are guys? कौन सी years में है सब लोग? Oh, we have 62 participants. Amazing. Second year, third year.
So I see majority is in first and second year. There are few from third year as well. I'm from BCom graduate. That's also a great insight. Okay. And I'll just have another question that कितने लोगों को यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सपोजर है, बेसिक या हल्की फुल्की नॉलेज है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, AWS के बारे में या किसी और क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में, एनीथिंग बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? सच सच बता देना, ऐसा नहीं कि तुम मेरे ही मजे ले रहे हो। देखते हैं कितना आता है इनको। ओके, GCP लर्निंग नाउ। क्लाउड के फंडामेंटल्स, एनीथिंग। किसी ने अपने अपने कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में जो भी हैं लोग, बीटेक कर रहे हैं या फिर MCA BCA कर रहे हैं, मे बी उनकी कोर्स में ही क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द गाइस लाइक मे बी दे आर नॉट। अच्छा, PIT कोर्स में नहीं है? PEIT कोर्स में नहीं है? नाइस। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग PIT के कोर्स में नहीं है? ठीक है। Okay, thank you for all the responses. It will help me to frame this whole session more relevant to you guys. So ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा, हाई लेवल। हेल्प करेगी मेरे को। So these kind of questions, there are so many things. तो I'll also try to guide you how to get started with AWS Cloud. कैसे आप लोग सीख सकते हो एज अ बिगनर, क्या लर्निंग पाथ होना चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, और हम लोग थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे। और लास्ट में जो भी हम सेशन में देख रहे हैं, तो उसकी एक बेसिक क्विज होगी जिसमें टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स को हम एक स्वैग पैक देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सो रौनक, क्षितिज, अभी कोई भी आप में से बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग की एक डेफिनेशन या फिर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेगा एक बार? So cloud computing basically works on like user demand. So जैसे अपन होस्टिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, लाइक बेसिक इंस्टेंस बना सकते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, रेड हैट हो गया, इन हाँ सब के ऊपर। एंड बेसिकली तो होस्टिंग के लिए यूज होता है, एंड स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन। हाँ, मल्टीपल यूज केसेस, करेक्ट। यस सर। थैंक यू क्षितिज। एनीवन एल्स? अच्छा, रेज्ड हैंड का भी फीचर है क्या इसमें? आईसी हरीश एहसान मानव ने हैंड रेज किया है, तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन के साथ ये बताता हूँ। लेट्स से एक यूज केस है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो ये सिली भी लग सकता है सुनने में, बट समझने में इजी रहेगा कि क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। आई मीन हर कोई यूज़ कर रहा है। तो लेट्स से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप लोग अपने फ़ोन चार्ज करते हो, फ़ैन चलाते हो, लाइट चलाते हो, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक बिल आ जाता है। तो वो जयपुर में जैसे जे क्या क्या बोलते हैं, JCR से नहीं, JVVNL है। तो JVNL आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, तो उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप मैनेज कर रखा है
तो आपको बस यूज करने हैं उनकी, और जितना आप यूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली उतनी यूनिट्स आ जाती हैं, और यू विल गेट योर बिल। आप उसको पे करो और कंटिन्यू यूज करो। तो कभी आपको वो बोलता नहीं कि कितनी यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसमें, आप जितनी यूज करो उतना बिल दे दो। बट अगर लेट से आप चाहो कि नहीं यार मेरे को अपना खुद का लाइट चाहिए, मेरे को किसी से लेना नहीं है, तो इट विल बी वेरी टफ टू बिल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप अपना खुद का पावर जनरेट करोगे तो उसमें कितनी सारी डिपेंडेंसीज होंगी, आपको नहीं पता आप कितनी लिमिट तक उसको यूज कर सकते हो। आपको कब उसकी लिमिट इंक्रीज करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ जाए, उसकी मेंटेनेंस, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो यू विल बी ओनली हैंडलिंग ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज एंड सिचुएशंस इन ऑर्डर टू गेट गुड लाइफ स्टाइल ऑफ हैविंग कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए तो हम लोग बड़ी सर्विसेज के साथ, जो कि हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करिए जिनसे हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। सो सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट यही है क्लाउड कंपनी के साथ भी, कि इफ इट इज गुड टू हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर or resources what you want to use in a remote environment where you don't have to manage everything, but you can just focus on your use case, on your innovation, and use resources which are already there in cloud or in some environment which you can use those resources via network. So let's say मेरे पास लैपटॉप है, मैं अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि flipkart.com। तो दिवाली जैसे अभी भी गई, तो मैंने लेट से दिवाली से जस्ट पहले अपनी एक वेबसाइट बनाई, और मैंने उसको अपने ही लैपटॉप पे होस्ट करके पब्लिक आईपी खरीद के अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसको होस्ट कर दी flipkart.com को। अब मैंने कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, मार्केट्स में जाके उसको मार्केट किया, और बहुत सारे यूजर्स को पता चल गया जयपुर में कि हाँ ये फ्लिपकार्ट करके अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब 100-150 यूजर्स आ रहे हैं मेरे पास मंथली, तो दैट इज़ गुड। मैं अपने आप इजीली अपने लैपटॉप पे मैनेज कर पा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ खर्चा करे, तो मेरे को लग रहा है तो फ्री में काम हो गया मेरा, मैंने होस्ट कर दिया। बट लेट्स से इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया रील्स डाल के मैंने बढ़िया मार्केट कर दिया उसको, और सडनली वायरल हो गए प्रोडक्ट्स, और 100 से सीधा 1000 कस्टमर्स आने लग गए, तो मेरा लैपटॉप तो क्रैश कर गया। माई लैपटॉप कैन नॉट सर्व दिस काइंड ऑफ दिस लेवल ऑफ रिक्वेस्ट। तो एट दैट टाइम मैं 4 और लैपटॉप खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे खासे वैसे कमा लिए थे 100-150 लोगों से। सो वापस सॉर्टेड हो गई चीज़ें। अब दिवाली सेल भी आ गई, और उस टाइम पे यूजर्स काफ़ी ज़्यादा थे, और 4 लैपटॉप इजीली मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे और शॉपिंग कर पा रहे थे। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, दिवाली भी गई, सीजन भी खत्म हो गया, और मैं अपनी सपोर्ट नहीं दे पा रहा अच्छे से अपने कस्टमर्स को, या फिर कह लो कि यूजर्स कम हो गए वापस। तो अब एक ही लैपटॉप काफ़ी है यूजर्स को रिक्वेस्ट उनकी अच्छे से सर्व करने के लिए, तो अब मेरे 3 लैपटॉप के रिसोर्सेज तो वेस्ट हो गए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आ ही नहीं पा रही मेरे पास। सो इन सच सिचुएशंस हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं, कि फालतू की इन चीज़ों की झंझट से कि कितने रिसोर्सेज लगाने हैं ऑन प्रेमिसेस पे, क्या करना है, मैं सिर्फ अपने वेबसाइट पे काम करूं, अपने कस्टमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो देखूं, इंस्टेड ऑफ इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, रिक्वेस्ट उनको मिल रही नहीं मिल रही। तो दैट्स वाई लाइक पीपल यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग पे दे हैव सो मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो एज अ बेसिक एग्जांपल, जैसे मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, वैसे एक EC2 सर्विस होती है, आई बिलीव सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा EC2 सर्विस के बारे में। तो वहाँ पे हमको एक कंप्यूटर सर्विसेज मिलती है, मतलब कंप्यूटर्स मिलते हैं वर्चुअली, जिनको आप नेटवर्क के थ्रू यूज कर सकते हो। सो अब आपने EC2 सर्विस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया, अब आपको उसमें प्राइसिंग सिमिलरली, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से बताया था कि जितना आप यूज कर रहे हो उतनी प्राइसिंग आपको देनी है मंथली। एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे आप सर्विसेज यूज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी प्राइसिंग आती जाएगी। और EC2 का मतलब जैसे इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट होता है, तो इलास्टिक हेयर कंप्लीटली डिफाइंस दैट वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो वही, अगर थाउजेंड्स रिक्वेस्ट भी आ रही हैं तो भी वो आपको सर्व कर देगा, 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही है तो भी आपको सर्व कर देगा। हम लोग इसका एक छोटा सा डेमो भी करके देखेंगे लास्ट में, बट ये हाई लेवल एक एक्सप्लेनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सी क्लाउड कंप्यूटिंग by definition refers to on demand delivery of IT resources and applications via the internet with pay as you go pricing। कि वही
virus. Now what is Amazon Web Service, what is AWS? So मैंने जैसे आपको बताया रिसोर्सेज लोग अपने यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, just like EC2, S3 bucket, so many things. We'll see things later. So, a broad and deep platform that helps customer build sophisticated, scalable, secure applications. तो ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में बना रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन उनको रन करनी होती है। तो रिगार्डिंग दैट बहुत सारी डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज AWS में है जो कि वो लोग यूज कर सकते हैं टू simplify those sophisticated architectures within the cloud. And here are some companies, famous companies, what I would say they're using AWS. So let's say NASA, Amazon. So Amazon से confuse नहीं होना. Amazon is like a customer of AWS. Amazon and AWS are separate entities. So जो भी हम Amazon.in पे देखते हैं, everything is hosted on AWS. So NASA के लिए we can just have a quick example. NASA use AWS. सो आप लोग भी ऐसे सर्च करके केस स्टडीज पढ़ सकते हो कि कैसे ये बड़ी कंपनीज AWS यूज करके एक्सेल कर रही हैं मार्केट में। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, फिर से स्टार्ट करो। तो ये तो हाई लेवल डेफिनेशन थी क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब उसमें आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी जो अपन फोन में ड्राइव्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, EC2 है, अलग अलग लेवल पे हम लोग क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट लेवल ऑफ आर्किटेक्चर्स भी होते हैं क्लाउड में टू जस्ट सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासीफाई द फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कि किस किस तरह से सर्विसेज होती हैं। सो उसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, पिज्ज़ा एज अ सर्विस। सो लेट्स से अगर आपको पिज्ज़ा बनाना है अपने में, तो जैसे कि ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस होता है जो मैंने आपको बताया था कि अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग वट एवर द थिंग्स रिसोर्सेज और आई वुड से डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पिज्ज़ा, टू मेक अ पिज्ज़ा, टू बेक अ पिज्ज़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टू बेक अ पिज्ज़ा। सो वो सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करूँगा, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय मी एंड देन आई विल हैव माई पिज्ज़ा। बट लेट्स से in infrastructure as a service, what you are getting is um, अब जैसे मेरे को पिज्ज़ा खाना है तो डाइनिंग टेबल तो मेरे को खुद की चाहिए, और बेसिक जो भी बेसिक नीड्स हैं उसकी जो कि इजीली घर पे अवेलेबल होती हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मैं मैनेज कर लूँगा। बट पिज्ज़ा डो, टोमेटो सॉस, टॉपिंग्स, चीज़ जो कि मेरे को लानी पड़ती हैं, या फिर जो थोड़ी और झंझट वाली चीज़ें होती हैं, वो वो चीज़ें कोई वेंडर मेरे को दे दे अगर, और मैं सिर्फ अपना पिज्ज़ा वहाँ पे आराम से बेक कर लूँ और बेसिक रिसोर्सेज वो मेरे को दे दे, तो मैं इजीली और ज़्यादा एफिशिएंटली अपने काम को कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ और आई वुड से इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग सच रिसोर्सेज बाय माई सेल्फ एज अ ऑन प्रेम। सो अगर और फर्दर हम आगे जाते हैं, तो जो सर्विसेज हम लोग मैनेज कर रहे थे लेट्स से अभी तक, बेसिक डाइनिंग टेबल और जो भी बेसिक चीज़ें रिसोर्सेज थे, और ज़्यादा कंप्राइज हो जाए डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस, क्या यूज़ केस है आपका, कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें और भी ज़्यादा कम सर्विसेज हम लोग अब अ, खुद हैंडल कर रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें वेंडर वेंडर हमको दे रहा है। और लेटली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जहाँ पे बस हमको खाना है, जो कि हम जाके किसी डोमिनोज स्टोर पे जाके खा लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो इसको हम जल्दी से रिलेट करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे लेट्स से जो मेरा एग्जांपल था क्या कहते हैं उसको, ई कॉमर्स वाला, तो वहाँ पे मैं एप्लीकेशन भी बना रहा हूँ, डेटा भी मैनेज कर रहा हूँ, एवरीथिंग अपना मेरे लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन करूँ नहीं करूँ, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, एवरीथिंग is gonna managed by me. But if I'm using EC2, so EC2 is an example of infrastructure as a service, तो वहाँ पे only things what I am managing is my application, my data, my runtime, middleware OS, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को चाहिए, एप्लीकेशन में क्या क्या करना है, डेटा रिलेटेड थिंग्स, जो भी कोड बिल्ड करना है मेरे को, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय मी, जो कि मेरी डिपेंडेंसी है। बट जो सर्वर्स हैं, स्टोरेजेस हैं,
हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो सब मैं एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले रहा हूँ टू ईज माई वर्क. अब नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहाँ पे एप्लीकेशन और डेटा मेरे पास है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम यूजिंग from a service provider. For example, I think S3 bucket. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही क्लाउड पे होस्टेड है और मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा और वहाँ पे जाके बस अपने यूज केसेस को फुलफिल कर रहा हूँ. विल सी द एग्जांपल्स लेटर. सो AWS प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ब्रॉड एंड डीप फंक्शनैलिटी. तो एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था कि मैं तो डेवलपर हूँ, मैं तो मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, मेरे को AWS क्यों पढ़ना है. So this is a quick high level overview of what kind of services in which segment or zoner AWS have. So आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं. सपोर्ट के लिए अगर एक सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी में, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है. एनालिटिक्स, डेवऑप्स, मोबाइल सर्विसेज, IoT, मशीन लर्निंग, जितने भी तरह के IT कंपनी में डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रीम्स हो सकती है, उनसे रिलेटेड सब सर्विसेज हैं. बट यू सी कोर सर्विसेज, these five services, that is compute, which is EC2, storage, networking, database and CDN. ये पांच एक AWS की कोर सर्विसेज हैं जो कि सबको हर एक सर्विस में यूज होती है बैकएंड पे. और यू कैन से दिस इज अ बैकबोन ऑफ होल AWS, कैसे सब चीजें यूज करती हैं. बट इतनी सर्विसेज हैं, तो अगर लोग बोलते हैं कि आई वांट टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर, फिर मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, तो दैट डजंट मीन दैट कि आपको सारी सीखनी है, क्योंकि सारी सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इतना तो नहीं लगेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. दैट इज नॉट feasible एट ऑल. सो वाई शुड आई क्लाउड कंप्यूटिंग लर्न, लगाना भूल गया मैं, सॉरी. वाई शुड आई लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग और वाई शुड आई यूज क्लाउड कंप्यूटिंग. सो इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा इस वेबसाइट पे मिलेगा आपको, रैंप अप गाइड. क्लिक होगा क्या इस पे? लेट मी टेक यू थ्रू दैट. और ये सारे लिंक्स मैं आपको भेज भी दूंगा लास्ट में. सी हियर. सो AWS अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वेबसाइट यूजफुल है. आगे और देखेंगे हम इसमें, बट बाय सॉल्यूशंस. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. सो इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट, database database engineers, if you're doing IoT, machine learning, anything, then AWS is for you. So it's not like you need to learn AWS or cloud computing if you want to become a cloud engineer or DevOps engineer. But the thing is, if you are in IT industry and you have uh, you are working with computers, then AWS is for you or cloud computing is for you. So बेसिक सा फंडामेंटल यही है कि लेट्स से 20 साल या 30 साल पहले, 20-30 साल पहले हमने अपने पेरेंट्स से जरूर सुना है कि आ, हम लोगों ने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया और हमको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं कंप्यूटर से रिलेटेड. लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट यूज करना, पावर पॉइंट यूज करना, जो भी बेसिक कंप्यूटर थिंग्स हैं. सो सिमिलर वे में अगर आज हम लोग IT इंजीनियर हैं किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग वो एक बेसिक चीज है. इट्स नॉट अ फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट राइट नाउ. Everyone should learn cloud computing to just excel their own path, their own their own domain, or we can say जो भी उनकी स्ट्रीम है. सो आप लोग, बहुत सारे लोग डेवलपमेंट करते होंगे, मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड होंगे, या AI, ऑब्वियसली AI इंजीनियर्स भी होंगे बहुत लोग जो चाहते हैं कि इस पे मैं काम करूं. तो दैट डजंट make you limited if you are a cloud computing engineer or DevOps engineer, these kind of roles. Hmm. So how do I get started with AWS clouds? So know the basics and concepts. Hmm. So without jumping to, I would say, use cases or building the infrastructure, अगर किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है तो उसके लिए एक बेसिक प्री है कि he should or that guy should be aware of basic fundamentals, जो कि आई कैन से कॉलेज में भी हम पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, these kind of things. If you learn in college, then I would say do not just learn these to pass your exams. वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत काम आती हैं. अब उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक OSI मॉडल, अगर आपने देखा हो,
किसी को पता है OSI मॉडल? क्षितिज। हाँ, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक कॉन्सेप्ट है बेसिक कि कैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में चीज़ें काम करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। सब नेटिंग, कैसे आईपी मिलती है सिस्टम्स को। सो ये सब बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो दैट वुड बी वेरी वेरी मच यूजफुल इन इन रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज इन प्रोडक्शंस। This last point is more important. Know your area of tech you would love to specialize in, and then uh, infuse your cloud computing skills with that. कि अगर आप मशीन लर्निंग करते हो, डेवॉप्स करते हो, डेवॉप्स के लिए तो खैर मैंडेटरी है क्लाउड, बट स्टिल अगर आप डेवलपमेंट करते हो, एमएल करते हो, तो हाउ यू कैन बी मोर एफिशिएंट यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इन योर डोमेन, इन योर एक्सपर्टीज। ठीक है, हम लोग एक क्विक डेमो करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे कि वही वाला एग्जांपल, एक मैं वेब सर्विस बनाता हूँ और विल जस्ट होस्ट दैट इन क्लाउड एंड आई विल जस्ट गाइड यू थ्रू द होल स्टेप्स। But before that, let's just have a quick walk around AWS console. So this is our AWS console, and first thing you will see, let me just tell you about regions. तो AWS जैसे मैंने बताया कि एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है रिमोटली, जो कि किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में होंगे, जो कि हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कितनी सारी कंट्रीज हैं, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, एशिया पैसिफिक में मुंबई, इसको पता नहीं कौन सी है, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। तो इन सब रीजन्स में AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। विल जस्ट सी कि अलग अलग कंट्रीज में क्यों है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फर्दर अगर कोई भी सर्विसेज आपको यूज करनी है तो आप इस टैब से जिस भी डोमेन की सर्विसेज हैं, एनालिटिक्स की होगी या फिर मशीन लर्निंग की होगी, सी सैटेलाइट, इंटरेस्टिंग थिंग। बट हम लोग कंप्यूट पे जाएंगे और EC2 के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो कि सबसे बेसिक सर्विस है, कोर सर्विसेज है। तो लेट मी जस्ट शो यू क्विक एग्जांपल कि क्यों ये इतने सारे रीजन्स होते हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि मेरी एक जो वेबसाइट है flipkart.com, उसमें बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रही है। वो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड उसके यूजर्स बढ़ गए हैं, हर कंट्री से लोग उस पर ऑर्डर करते हैं। तो लेट से अगर मैं अपने लैपटॉप को अपने इंडिया में ही रखता हूँ, तो एक लेटेंसी आती है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से कहीं से उस वेबसाइट पे हिट करेगा तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा टाइम लगेगा यूज़ करने में। तो उसको अपन यहाँ से देख सकते हैं, देखो। सो यहाँ पे सारे रीजन्स हैं AWS के, जस्ट अ क्विक एग्जांपल। तो अगर हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, सो लेट सी मुंबई में जो भी इंस्टेंसेज हैं वहाँ पे ओनली 49 मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का ही लेटेंसी आ रही है। दिल्ली में सिर्फ 11 मिली सेकेंड की लेटेंसी आ रही है। बट सेम थिंग अगर सिडनी में जा रही है तो 170 यूजर्स, सॉरी, सेकेंड्स। वैसे ही लेटेंसी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो लेट से अगर मेरे यूजर्स यूरोप में ज़्यादा हैं या फिर नॉर्थ वर्जीनिया में ज़्यादा हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट को उन उन रीजन्स में होस्ट कर दूंगा, ताकि जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। So that is related to one of the core service which was CDN, which I had shared here. That is content delivery and network, कि कैसे पूरे ग्लोब में नेटवर्क बना हुआ है AWS का, और आप कैसे उसको यूटिलाइज करके कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हो। ओके, लेट्स प्रोसीड विद डूइंग अ डेमो। तो मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे या फिर AWS के खुद के। बट एक क्विक ओवरव्यू। सो मैं एक अपने इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहा हूँ, विच इज़ अ EC2 इंस्टेंस, टेस्ट PIET। और यहाँ पे हम कोई सा भी OS यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम चाहें। यहाँ पे AMIs, दैट इज़ Amazon मशीन इमेजेस, जहाँ पे कि हर तरह के OS की इमेजेस ऑलरेडी बनी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। कौन से तरह का आर्किटेक्चर आपको चाहिए जो कि आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, दैट यू कैन यूज़
different type of instance types depending on your use case. So अगर मैं इसका भी आपको क्विक ओवरव्यू दूं कि किस किस तरह के इंस्टेंट टाइप्स होते हैं. सी जनरल पर्पस की बेसिक कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए आपको चाहिए हाई परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस. गेमिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं. सो ऐसे ही हर तरह के इंस्टेंस टाइप है जो कि आपकी यूज़ केस को सर्व करेंगे एंड यू विल गेट बेस्ट एक्सपीरियंस. सो हम एक T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस टाइप यूज़ करें जो कि एक जनरल टाइप ही है. एंड देन वी हैव अ की पेयर जो कि हमको ऑथेंटिकेट करेगा कि हम ही है जो इसको ओन करते हैं. देन वी हैव अ नेटवर्क सेटिंग. हम उसमें कोई भी वर्चुअल नेटवर्क सेटिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आई यूज. We have security groups in the network setting which is important concept to learn. क्योंकि ये जो EC2 इंस्टेंस है ये पब्लिकली हम लोग रिमोटली यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे है, तो उसको सिक्योर करने के लिए जस्ट लाइक फायरवॉल जो हमारे फोन्स में लैपटॉप्स में होते हैं, तो ये एक सिक्योरिटी ग्रुप्स काइंड ऑफ फायरवॉल परफॉर्म करता है EC2 इंस्टेंसेस के लिए, so that you can just allow what kind of traffic in what port you want from here directly. So अभी हमने SSH ट्रैफिक यूज किया जिसको हम यूज करेंगे. एक SSH प्रोटोकॉल है जो कि कंप्यूटर्स को मशीन्स को रिमोटली एक्सेस करने के काम आता है. और आई एम जस्ट गिविंग सोर्स एज एनीवेयर कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. अगर मैं आपको उसकी ये जो की पेयर है मैं अभी यहाँ से भेज दूंगा तो आप भी इसको मशीन को एक्सेस कर सकते हो. बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं ही करूँ तो मैं अपनी आईपी को अलाउ कर दूंगा ओनली. बट अभी मैं एनीवेयर कर दे रहा हूँ. स्टोरेजेस, कौन सी स्टोरेज आपको चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए. स्टोरेज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिपेंड करती है कि आपको क्या यूज करना है. उसके अकॉर्डिंग आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो. देन एडवांस डिटेल्स, ये और भी ज़्यादा डिटेल्ड और डीप कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जिसमें से हम एक चीज़ यूज़ करेंगे थोड़ा सा, that is user data. But still let me just launch this first. So within a matter of few seconds it will just launch your instance. So ये है हमारा PIET server test. Okay, let's try to connect. So this is a command, Linux command to connect remote host or remote instances, remote servers. That is SSH, जिसका हमने security group में port allow किया था. So now I am in my EC2 instance. See, this is a fresh machine. जिसकी सारी डायरेक्टरीज हैं, ये लिनक्स की डायरेक्टरीज होती हैं हायरार्की के अकॉर्डिंग. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक कंप्लीटली न्यू मशीन है जो कि मेरे को फ्यू सेकंड्स में मिल गई है और इसको मैं कैसे भी यूज कर सकता हूँ. सो लेट्स क्विकली होस्ट अ वेबसाइट ऑन दिस. सो मैं एक वेब सर्वर पहले इंस्टॉल करता हूँ. So HTTPD is Apache web server which I'm installing right now in my instance. And let me just enable this service as well. So systemctl start HTTPD. So this is the command to enable a service. So let's check its status. It is active. So quickly हम लोग एक बार पब्लिक आईपी से एक्सेस करके देखते हैं कि इज इट एक्सेसिबल. मैं आपको भी पब्लिक आईपी दे रहा हूँ तो आप लोग भी इसको एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हो. एंड सून मेरे को ये रिएक्शन मिलने वाला है. इज इट गेटिंग एक्सेस्ड? एक्सेस कर पा रहा है कोई इसको? मैं भी नहीं कर पा रहा. वही नो रिस्पॉन्स. ओके, सो कैन एनीवन क्विकली टेल मी कि क्या रीजन हो सकता है कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा अपनी वेबसाइट को. सर इसका 80 पोर्ट ओपन करना पड़ेगा HTTP का. करेक्ट.
सिक्योरिटी ग्रुप में, राइट? यस। सो क्योंकि हमने 22 पोर्ट अलाउ कर रखा है, तो हम एसएसएस तो कर पा रहे हैं उसमें, बट पब्लिकली जो भी हमारे एचटीटीपी वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है, उनकी रिक्वेस्ट आ तो रही है, बट वो सर्व नहीं हो पा रही। अगर हम और इसको फर्दर डिक करेंगे, ये एक न्यू टर्मिनल है, और तो ये भी टाइम आउट हो जाएगा थोड़ी देर में। सो इस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट टेस्ट कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट की क्या स्टेटस है, क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग, कैसे आप ट्रबल शूट करते हो इश्यूज को। बट क्विकली हम लोग पोर्ट 80 को इसमें ऐड कर देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। एनीवेयर। सो अब एक बार हिट करके देखते हैं, इट वर्क्स। सो बिकॉज हमने और कोई भी टेम्पलेट नहीं दिया था वेबसाइट का, तो ये एक बेसिक डिफॉल्ट टेम्पलेट है अपाचे का। सो आई होप आपका भी काम कर रहा होगा सब। अमेजिंग। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। बट अभी देखो, हम लोग अराउंड 50 अटेंडीज हैं अभी। सब लोग भी हिट करते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इसको, बट स्टिल लेट से ये भी एक वेबसाइट है और वही वायरल हो जाती है, तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर आ जाएंगे, बट एक छोटा सा EC2 इंस्टेंस इसको सर्व नहीं कर पाएगा। अगेन इसके भी अपने रिसोर्सेज हैं, इसकी भी एक लिमिट्स हैं। तो लेट्स से अगर थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हाउ दिस इंस्टेंस विल सर्व दैट। सर इसकी रिसोर्सेज बढ़ानी पड़ेगी शायद। प्रोसेस करना पड़ेगी, करेक्ट। आई मीन स्केल अप करना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए इंस्टेंस टाइप चेंज कर सकते हैं हम, एक चीज़ ये है। इसकी भी हमारे पास है ऑप्शंस, चेंज इंस्टेंस टाइप, बट अभी ये ब्लड आउट है क्योंकि इंस्टेंस रनिंग है, तो हम इंस्टेंस टाइप चेंज करके रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। बट ये तो सब चीज़ें ऑटोमेट होनी चाहिए ना, ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो हम बार बार तो इंस्टेंस टाइप चेंज कर नहीं सकते। तो और क्या तरीका हो सकता है? स्केल अप से ही सिमिलर एक तरीका है, दैट इज स्केल आउट। दैट मीन्स ऐसे ही और 4-5 इंस्टेंसेस लगा देते हैं साथ साथ में, जो कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, या फिर सिर्फ दो और एक और इंस्टेंस बना देते हैं जो कि उसका लोड हैंडल कर पाएगा इजीली। सो लेट मी जस्ट क्विकली लॉन्च अनदर EC2 इंस्टेंस। अब मैं यहीं से अलाउ कर दे रहा हूँ HTTP ट्रैफिक। और आई वाज मेंशनिंग अबाउट दिस यूजर डेटा प्रीवियसली अंडर एडवांस सेटिंग्स। सो इसमें हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टेंस लॉन्च होने से पहले ही उसमें चीज़ें अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ कर रहे हैं, HTTPD को इनेबल कर रहे हैं, सॉरी इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड देन उस सर्विस को इनेबल कर रहे हैं, और एक छोटा सा वेब पेज हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें। तो ये ऑलरेडी ही इंस्टेंस में आ जाएगा लॉन्च होते ही, हमको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी क्विक स्मॉल ऑटोमेशन, और ये उसके और भी यूज केसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। So yeah, here we have another instance, PEIT another instance, or let's quickly test this as well, if it is working fine or not. I'm giving this IP to you guys as well. It should take few more seconds. Now it is saying refuse to connect. Previously, if you remember, we were getting connection timed out. So इन दो एरर से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इशू हो सकता है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको कि कैसे कनेक्शन टाइम आउट और रिफ्यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एरर्स से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हो सकता है? ये सब बस कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिस है। सर वो अलाउ नहीं होगा उसके अंदर, मतलब अगर मतलब 80 पोर्ट ओपन होगा बट वो UFW अलाउ करके अलाउ करना पड़ेगा शायद अपने को। फायरवॉल। फायरवॉल आईपी पे UFW। डाउन नहीं होगी।
ओके, बट और ऊपर से देखें, इफ वी सी थिंग्स अबाउट लाइक फ्रॉम 10,000 फीट ऑफ हाइट, तो क्या हो सकता है? So कनेक्शन SSL. SSL सर ब्राउजर ने कनेक्शन वेबसाइट का कनेक्शन ब्लॉक कर रखा है, मतलब रिफ्यूज टू कनेक्ट में दो। रिफ्यूज टू कनेक्ट। ओके, सो आपने देखा कि स्टार्टिंग में रिफ्यूज टू कनेक्ट आता था, बट अब आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है कि EC2 इंस्टेंस जब हमने लॉन्च किया तो स्टिल लॉन्च हो रहा हो, और जो स्क्रिप्ट हमने रन करी थी वो रन हुई नहीं हो पूरी तरह से, बट हम पहले सेट कर रहे हैं। तो रीज़न तो इसका ये था कि वो सर्विस अभी तक अप ही नहीं हुई थी, HTTP सर्विस जो कि अपाचे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको और आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स से कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है या फिर रिफ्यूज आ रहा है, तो थिंक अबाउट लाइक आपका जो ब्राउजर है जहाँ से हम रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, वो एक रिक्वेस्ट पास करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जो कि जाती है वेब सर्वर पे, आपके इंस्टेंस पे। तो अगर वो रिफ्यूज आ रही है, दैट मीन्स वो रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है आपके मशीन पे, बट मशीन ने आपके इंस्टेंस ने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो रिक्वेस्ट तो पूरी पहुंच गई, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फायरवॉल तो नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप का कंसर्न तो नहीं है, वो रिफ्यूज कर रहा है, वो एक रिस्पॉन्स है उसकी तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि या तो वहां पे सर्विस रन नहीं कर रही, या फिर वो रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही। सो दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिससे कि आप नैरो डाउन कर सकते हो कि क्या पॉसिबल रूट कॉज है, और उसके अकॉर्डिंग यू कैन आइडेंटिफाई। सो सी नाउ आवर वेबसाइट इज वर्किंग। सो हमने दो वो लगा दिए इंस्टेंसेस, और यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर सकते हैं, और एक अनदर कॉन्सेप्ट आता है जो कि स्केल अप हमने किया था उसके बाद, कैसे एक लोड बैलेंसर की हेल्प से वी कैन जस्ट बैलेंस द लोड बिटवीन टू इंस्टेंसेस। बट उसके पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट वन एग्जांपल सिनेरियो। सो हम एक पूरा ही होल आर्किटेक्चर है जो कि एक बहुत सा बेसिक सा प्रोजेक्ट आप लोग भी यूज कर सकते हो। हम्म, हाँ, this is the question, what if I got thousands of requests tomorrow, so how my infrastructure will handle that? So we can just set up a scaled and load balanced application. So ये आर्किटेक्चर हम लोग बिल्ड करेंगे अभी, जो बहुत कम टाइम लेगा, बट क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये यूजर्स हैं जबकि हम लोग हैं। हम लोग HTTP रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं जो कि हमारे एक लोड बैलेंसर में जाएगी। लोड बैलेंसर्स के पीछे हमारे वो दोनों इंस्टेंसेस होंगे जो कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको मैनेज करेगा। सो सपोज 100 यूजर्स अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे हिट कर रहे हैं, तो दो इंस्टेंसेस हैं, दो इंस्टेंसेस पे लोड बैलेंस हो रहा है, 50-50 ले रहे हैं दोनों, लेट्स इमेजिन। बट अगर ये था, कितने बताए थे मैंने, 100 यूजर्स, अगर 200 हो जाते हैं या 400 हो जाते हैं, तो 400 यूजर्स में मेरे दो इंस्टेंसेस 200 रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे मेरे को ऑटोमेटिकली स्केल अप करना पड़ेगा, कि जैसे ही लोड उनका उनके थ्रेशोल्ड पे आ जाता है, तो मेरे को चार और इंस्टेंसेस मिल जाएं, और वो टोटल 6 इंस्टेंसेस मेरे लोड बैलेंसर के पीछे लग जाए, और ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सीमलेसली सर्व होते रहे बिना किसी कस्टमर को टाइम आउट एरर आए हुए। सो हम एक इसको क्विकली सेटअप करेंगे। मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ विद लोड बैलेंसर यूआई और ऑटो स्केलिंग यूआई। सो ये ऐसे हम लोड बैलेंसर्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लोड बैलेंसर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर यूज केसेस, एंड सिमिलरली ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स भी होते हैं। तो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग दीज सेपरेटली, टाइम बचाने के लिए हम एक बार इसको टुगेदर ही इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इस बट बार राम राम। राम राम, चलो, नाइस, ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो सिमिलरली जो मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे, एंड देन लोड बैलेंसर, और उसके पीछे जो भी इंस्टेंसेस चलते रहेंगे, विल सी कि हाउ इट ऑटोमेटिकली स्केल्स एंड सर्व्स आवर रिक्वेस्ट। Okay, let's do this in some another region so that we have a fresh UI without any pre-built resources to avoid any confusion. I hope इसमें कोई instances नहीं है. Okay.
ओके, लेट्स क्विकली जंप टू दिस. सो ऑटो स्केलिंग जो होगा वो हमारे इंस्टेंसेस को लॉन्च करना या फिर उनको टर्मिनेट करना डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जो कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट जो एक सर्विस है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको फुलफिल करता है कि कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनको लॉन्च या टर्मिनेट कर रहा है. टेस्ट PIET. अच्छा, बट बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट. दैट मीन्स कि किस तरह के इंस्टेंसेस हमको चाहिए जो हम यूज करने वाले हैं. टेस्ट टेम्पलेट नाम ओवरव्यू. नाम सर. काफी इंटरेस्टेड हैं लोग. सो सिमिलरली जैसे हमने एक इंस्टेंस लॉन्च किया था, हम भी यहाँ पे ओएस सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरे जितने भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पीछे इंस्टेंसेस हैं वो लिनक्स ही होने चाहिए. Instance type I'm using t2.micro. Let's create another key pair. Networking, will just keep it as it is. Now here, like, we'll just give our script. So this launch template is created now. Now let's continue creating our auto scaling group, which will use this launch template to launch instances. Test Purnima. So here a quick overview कौन कौन से हमारे configurations हैं. t2.micro instance type यूज कर रहे हैं, ये AMI है जो कि Amazon Linux instance है. So this network configuration is nothing like we have a VPC, that is virtual private cloud. कैसे हम अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर को रखना चाहेंगे, उसमें कितने तरह के सबनेट्स होंगे, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन यूज केस इट डिफर्स. यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन्स देख रहे हो, जो कि हमने स्टार्टिंग में टेस्ट किया था लेटेंसी के लिए. तो जितने भी रीजन्स दिख रहे थे, उन रीजन्स में भी बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं जो कि हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के कॉन्सेप्ट्स को फुलफिल करते हैं. कि लेट से अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में आग भी लग जाती है, लेट से मुंबई का रीजन है एक, उसमें AP साउथ ईस्ट 1A में आग लग जाती है, तो हमारे पास B और C में रेप्लिकेशन हो रहा है डेटा का, ताकि कस्टमर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिले और डेटा कोई भी लॉस ना हो. सो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं हमारे पास. Now we can integrate our load balancer along with that. So we'll just attach that auto scaling group with the load balancer. Okay, it has given a test PIT1 name. This load balancer will be internet facing क्योंकि हम उसी load balancer को यूज करके हमारी रिक्वेस्ट सर्व करेंगे. अच्छा, बीच में अभी तक जितना भी हमने स्टेप्स किए हैं, जो भी हमने लॉन्च किया है, गो थ्रू किया है, एनीवन हैज एनी डाउट्स? कोई भी कैसे भी एक क्वेरी हो, कुछ भी हो, यू कैन जस्ट आस्क नाउ. Okay, let's continue. It will just take 5 to 7 minutes to complete this whole configuration to see, and then we will just move to few more interesting topics. Okay, so subnets हमने बना लिया. Target group. So target group is nothing. जो भी load balancer हम implement कर रहे हैं, वो load balancer किस target पे load अपना route करेगा. So उस target group के पीछे सारे instances होते हैं. तो एक target group हमने already इसमें create कर दिया. Let's give it a tag test ALB application load balancer. Okay. अब यहाँ पे हम अपनी कैपेसिटी पा सकते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए. टू कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, सो मैं डिजायर करता हूँ कि मेरे पास एक इंस्टेंस तो रहे, बट मिनिमम एक ही रहना चाहिए. और अगर लोड बढ़ जाता है तो मैक्सिमम 2 या 3 हो जाए. लेट्स से गिव इट अ 3.
तो दैट मीन्स एक इंस्टेंस मेरी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एक रहे, ऐसा नहीं कि 0 कर दें इसको। इसको अपन 4 भी कर सकते हैं कि 4 मेरी रिक्वायरमेंट है और मिनिमम एक कर दें कि बहुत कम लोड हो तो एक इंस्टेंस तो रहे मेरे पास। सो इसका मतलब ये, और मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा लोड आता है 14 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आई जस्ट मेक इट 1 अगेन एंड मेक इट 2 or 3. We'll not use any policy right now, but if we have time, we'll just implement it as well quickly. Policy is nothing but कैसे हम अपने लोड को, सॉरी इंस्टेंसेस को स्केल करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो कि हम यूज कर सकते हैं। यू सी कैपेसिटी रिजर्वेशन, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग कि लेट्स से हम अभी T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस टाइप यूज कर रहे हैं, बट ऐसा होता है कभी कभी कि AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस टाइप अवेलेबल ही नहीं होता उस रीजन के लिए। लेट्स से वो क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है और अब अवेलेबल नहीं है, आपको हो सकता है इंस्टेंस टाइप चेंज करना पड़े बड़ा लेने के लिए, जिसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। तो उसके लिए आप कैपेसिटी रिजर्वेशंस भी ले सकते हो AWS में, कि मैं रिजर्व करना चाहता हूँ कुछ सेट ऑफ इंस्टेंसेस अपने वेबसाइट के लिए, तो कि मेरे को कभी भी कैपेसिटी से रिलेटेड एरर नहीं आएगी। ओके, लेट्स क्विकली मेक दिस। सो ये ओवरव्यू है जो भी हमने ऑटो स्केलिंग की कॉन्फ़िगरेशन करी है। लेट्स क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मीनवाइल लेट मी ओपन इंस्टेंस टैब। अभी तक सिर्फ 2 इंस्टेंस थे हमारे पास। अच्छा, रीजन दूसरा है, ओरिगन। Let's see the activity. See, this is launching a new instance. ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली कर रहा है। सो ये एक न्यू इंस्टेंस लॉन्च हो गया हमारा। अब साथ साथ मैं आपको लोड बैलेंसर भी दिखाता हूँ जो कि इसी कॉन्फ़िगरेशन ने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। टेस्ट PIT1। सो इट इज एक्टिव नाउ। अब नाउ वी कैन डू, जो कि हमको वेबसाइट एक्सेस करनी है हमारी या जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करनी है वो हम अब लोड बैलेंसर के थ्रू करेंगे अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। यू सी, यूजर्स जो है वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे कर रहे हैं और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर राउट करेगा रिक्वेस्ट। तो हमारे पास एक DNS नेम होना चाहिए लोड बैलेंसर का, जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हेयर इसका DNS नेम ये है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक्सेस करने का। लेट्स सी की रिक्वेस्ट सर्व हो रही है कि अभी भी कोई एरर आ रहा है हमको। तो चला गया। अब लोड बैलेंसर्स के पीछे और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के इंस्टेंसेस के पीछे भी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जिनको हमने अभी तक अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया। सो लेट्स कॉन्फ़िगर दोज एज वेल। HTTP एनीवेयर। सो दिस इज फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर का भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ओके, इट इज करेक्ट। Okay, it is still in provisioning state. Let's wait for a few more seconds. So in the meanwhile, anyone has any doubt, anything they want to ask, anything related to this configuration or okay, it is active. Let's try to test this. This message from this IP. So ये वेब पेज है जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया था। मैं आपको स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ क्या हमारी स्क्रिप्ट थी। दिस मैसेज फ्रॉम होस्ट नेम, तो जिस भी इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट जाएगी तो उसकी IP हमको दिख जाएगी।
अब लेट्स सपोज ये हमारा आर्किटेक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। या रिक्वेस्ट आ रही है, लोड बैलेंसर है, अभी सिर्फ एक इंस्टेंस है तो हम लोड बैलेंसर का रियल टाइम व्यू नहीं दिख पा रहे कि कितने इंस्टेंसेस पे रिक्वेस्ट रेज हो रही है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पीछे है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट यूज केस कि मेरा कंप्यूटर का जो लोड है, मेरे मशीन का जो लोड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सर्व नहीं कर पाता रिक्वेस्ट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑटो स्केलिंग के अंदर कि किस तरह से हमको स्केल करना है, कब स्केल करना है, इसको हम सेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। मैं इसमें ये डाल देता हूँ कि जितना भी मेरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, अगर वो 20% से ज़्यादा हो जाता है तो मेरे को एक न्यू इंस्टेंस लॉन्च कर देना। वैसे 20% बहुत कम है, बट हम एक बार जल्दी टेस्ट करने के लिए ऐसे कर लेते हैं। एंड लेट्स क्रिएट दिस पॉलिसी। नाउ एक हमारे पास और कोर सर्विस है AWS की, क्लाउड वॉच, जो कि मॉनिटरिंग के लिए यूज़ आती है कि कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, हम इस डैशबोर्ड से मॉनिटर कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने वो बनाया था, सो इसने कुछ अलार्म्स बना दिए ऑटोमेटिकली टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी के लिए, जो कि हमारे लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप को मॉनिटर करेगा। तो जैसे ही 20% से ऊपर लोड होता है तो यहाँ पे अलार्म पे डेटा पॉइंट आ जाएगा और अकॉर्डिंगली हम इसका एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स इंक्रीज द लोड। हमारा इंस्टेंस है ये रहा। अच्छा, सॉरी। ओके, आई विल लॉग इन इनटू दिस इंस्टेंस नाउ एंड इसका थोड़ा सा लोड बढ़ाते हैं। सो एक लिनक्स में यूटिलिटी है स्ट्रेस करके, यूजिंग दैट यूटिलिटी हम लोग एक आर्टिफिशियल लोड इसमें इन्फ्यूज करेंगे। कैन एनीवन टेल नाउ कि अब क्यों हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे इंस्टेंस पे? क्योंकि हमने अपने लॉन्च टेम्पलेट में पोर्ट 22 को नहीं डाला था। सो लेट्स जस्ट क्विकली ऐड 22 एज वेल। Okay, we are in. So let me just install that. ये कमांड है हमारी एक। सो ये कमांड सीपीयू के कुछ थ्रेड्स को कैलिब्रेट करेगी, सिमुलेट करेगी, अकॉर्डिंगली सीपीयू का लोड अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। इसको हम यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं इंस्टेंस पे जाके। इफ वी गो अंडर मॉनिटरिंग सेक्शन, तो ये वही क्लाउड वॉच का एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। तो यहाँ से हमको सीपीयू यूटिलाइजेशन दिख रहा है हमारे इंस्टेंस का कैसे बढ़ेगा। सो लेट्स मेक इट 1 मिनट वंस एंड मैक्सिमम। सो टाइम टू टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। अब लेट्स चेक दिस अलार्म। सो इज देयर एनी activity in this alarm? Let's wait for a few seconds. सो यहाँ पे एक्टिविटी हम देख रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ एक ही इंस्टेंस लॉन्च हुआ था, जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग था कि हमको डिज़ायर एक ही था और मैक्सिमम 3 हमको चाहिए थे। तो जब तक इसका लोड अलार्म तक पहुंच रहा है, anyone wants to ask anything? Let's make this more interactive regarding
doubt, any use case, anything. Feel free to shoot your queries. CloudWatch. वन वर्ड आंसर तो होते थे, वन वर्ड क्वेश्चन क्या होता भाई? हाय प्रियंका, डू यू हैव एनी डाउट? यस सर। सर मुझे क्लाउड वॉच का कंसेप्ट मतलब क्रिएट कैसे किया और ऑटो स्केलिंग ग्रुप का ही समझे नहीं। मतलब क्लाउड वॉच ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स को कैसे यूज कर रहा है, या फिर ऑटो स्केलिंग हाँ भी नहीं समझ में आया और क्लाउड हाँ, वॉच? वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे क्यों यूज करे वो नहीं समझे। मैं बताता हूँ। सो हमने जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर एक पॉलिसी बनाई थी, सो इस पॉलिसी की बाय डिफॉल्ट इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है कि ये क्लाउड वॉच को यूज करेगा। अब क्लाउड वॉच क्या है, जैसे कि हमने एक बेसिक इंस्टेंस की डिटेल्स देखी मॉनिटरिंग पे, तो यहाँ पे हम अपने इंस्टेंस के अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो देख पा रहे हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है related to storage, related to CPU, so that we can monitor from here कितने network packets उसमें आ रहे हैं. So this is useful when we are monitoring our infrastructure if it is working efficiently or not. So similarly CloudWatch के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें अलार्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं कि कितने परसेंट यूटिलाइजेशन पे हमको अलार्म मिल जाए, और उसमें हम इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं. तो ये CloudWatch एक सेपरेट सर्विस है अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर CloudWatch. सो सिमिलर टू EC2 एक ये भी एक सर्विस है जिसमें कि डिफरेंट सेट ऑफ फीचर्स हमको दिख रहे हैं. सो जैसे मैंने अलार्म बताया, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो हमारे पास AWS की सर्विस है, वो अलार्म्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रही है हमारे लिए, हम मैनुअली नहीं कर रहे क्रिएट. तो उसने इस अलार्म को क्रिएट किया और इस अलार्म के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी में हमने चीज़ें कन्फिगर करी है वो स्पाइक हो जाएगी. सो आई होप यहाँ पे अलार्म ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका. आई होप थोड़ा क्लियर होगा प्रियंका क्या क्लाउड वॉच सर्विस यूज़ होती है. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेट्रिक्स होती हैं, हम उनको यूज़ करके, जैसे कि लोड बैलेंसर की भी मैट्रिक्स हमको दिख रही है कि लोड बैलेंसर यूज़ करके जो जो लोग हमारे वेब पेज पे जा रहे हैं उनको कैसे रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, वो सारी मैट्रिक्स हम यहाँ से देख सकते हैं डिटेल में, कि इनको किस किस तरह की एरर्स आ रही हैं, ताकि हम उसको और बेसिकली ट्रबल शूट करेंगे अच्छे से और कैसे अच्छा एक्सपीरियंस देंगे कस्टमर्स को. सो ये क्लाउड वॉच सर्विस है जिसकी फीचर को ऑटो स्केलिंग यूज़ कर रहा है साथ साथ. सो यू सी अब दो न्यू इंस्टेंसेस लॉन्च हो गए अपने आप ही, जिसको लॉन्च किया हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने, बिकॉज जो पॉलिसी हमने ऐड करी थी, यू सी यहाँ पे पूरा रीज़न दिख रहा है कि क्यों एक इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, कि जो अलार्म था हमारा जो कि टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी के लिए हमने बनाया था, इट हैज़ जस्ट ट्रिगर्ड एंड लॉन्च अनदर इंस्टेंस, क्योंकि हमने कैपेसिटी भी 3 रखी थी मैक्सिमम, तो 2 ही इंस्टेंस लॉन्च हुए हैं. अब आप लोग इसको टेस्ट करोगे अगर, जो कि DNS मैंने आपको दिया था लोड बैलेंसर का, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस दिखेंगे बार बार. सी अब रिक्वेस्ट जारी है 32.8 इंस्टेंस पे, 220 पे, 117 पे. सो यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है, और जैसे जैसे लोड आता रहेगा वैसे वैसे इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे बेस्ड ऑन आवर ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन. सो ये हमारा हाईली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक रेडी है, जो कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है. यहाँ पे बस एक कोई सी भी वेबसाइट लगा दो और इट इज़ गुड टू गो. So this architecture is created now. So anyone has any doubts regarding how this is working? Want to have any follow-up question on this? Any query?
और क्विक थम्स अप कि अगर ये यूज केस सेंस बनाता है आपके लिए कि इट इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल. ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पांस. Okay, then let's continue with the next things. How do I get started with AWS Cloud as a student? Maybe hands-on practice projects, join hackathons. There are a lot of things to do together. I know this is very irritating कि आप लोग कॉलेज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, असाइनमेंट्स करने हैं, लैब्स हैं, प्लेसमेंट्स की भी प्रिपरेशन होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं, उसके साथ साथ कॉलेज की जो कोर्सेज हैं वो हैं. अलॉन्ग विद दैट यू हैव योर ओन गोल्स. कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, लोग बहुत सारे कोर्सेज परचेज करते हैं, लर्निंग करते हैं. तो उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ही छोटे लेवल पे अगर करोगे साथ साथ, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू शूट अप योर करियर फर्दर. सो लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है, डॉक्यूमेंट ब्लॉग ब्लॉग्स, गिटहब लर्निंग, लिंक्डइन पोस्ट, प्रोजेक्ट्स. सो एक छोटी सी टिप है, यू कैन जस्ट क्रिएट सम ब्लॉग्स. जो भी चीज़ आप कर रहे हो, लेट्स से आपने आज ये सीखा कि कैसे एक हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर बनाना है, तो आप उसका एक क्विक ब्लॉग कर सकते हो. उसको पहले प्रैक्टिस करो वापस. इसके बहुत सारे आपको गाइड्स मिल जाएंगे. यूजिंग ALB एंड ASG. सो एक मीडियम ब्लॉग है. AWS का खुद का एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो सीरियस. तो आप इसको हैंड्स ऑन करोगे, देन यू विल गेट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज यू विल सी. अगर आपको एरर्स आएंगे आप उसको ट्रबल शूट करोगे. बट ये सब चीज़ें आगे की है. बिफोर दैट ये दो लिंक्स हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ यहाँ पे. सो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग, which you should be, then your roadmap should look like, first start with basics. So particularly cloud computing के लिए दो बहुत ज़्यादा important segments हैं जिनको you should have a basic understanding, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें. So first thing is operating system, second is computer networks. ये दोनों ही फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन में भी होंगे. सो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए. कंप्यूटर नेटवर्क इन द सेंस कैसे OSI मॉडल, TCP IP, ये सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं. अगर आप IT इंजीनियर तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी, और जो कि आई एम श्योर आपके कोर्सेज में भी होंगी. सो आई वुड सजेस्ट जब भी आपके टॉपिक्स ये सब आए आपके कोर्सेज में, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ो. स्टिल मैं अभी भी जिन कस्टमर्स के साथ काम करता हूँ क्लाउड पे, कभी कभी इतने बेसिक इश्यूज के चक्कर में उनका डाउन टाइम इतना ज़्यादा आता है, और कई बार बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से ही उनकी इश्यूज ट्रबल शूट होते हैं. सो आई स्टिल हैव दोज बुक्स विद मी. समटाइम्स थ्रेड्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं देखता रहता हूँ. इट हेल्प्स अ लॉट. एंड आई रेग्रेट कि मैंने कॉलेज में चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी थी, एंड अब उनको वापस पढ़ना पड़ रहा है. सो स्टार्ट विद बेसिक्स, दोज फंडामेंटल्स. आई वुड से अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना चाह रहे हो तुरंत, तो 5 से 6 दिन आप उनकी बेसिक्स को पढ़ो. कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजरली लाइनक्स के बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे. देन go for it. Start learning computer networks and Linux, and then jump into fundamentals of cloud. क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, व्हाट आर द यूज केसेस. सो AWS का ही एक सर्टिफिकेशन पाथ है, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, तो आप उसके कोर्सेज ले सकते हो. बहुत सारे AWS के फ्री अवेलेबल हैं, इन पे आपको मिल जाएंगे जो दोनों लिंक्स हैं. सो लेट मी शो क्विकली. सी फ्री लर्निंग कंटेंट. सो यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसका एग्जाम देना, बट जिसका जो क्लाउड प्रैक्टिशनर वाला कोर्स है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको एक बार गो थ्रू करें. सो यू विल गेट द बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या चीज़ें होती है इसमें इन्वॉल्व, कैसे आप उसको यूज़ करते हो और फिर किस डोमेन में आपको पढ़ना है. सो वंस यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद दिस प्रैक्टिशनर रोड मैप, उसके बाद यू जस्ट आइडेंटिफाई कि आप किस डोमेन में हो. अगर आप डेवलपर हो, अगर आप
डेवॉप्स में हो तो डेवॉप्स के लिए तो मैंडेटरी है ही क्लाउड कंप्यूटिंग, दोनों साथ में काम करते हैं. So accordingly, you'll just take your path and start doing specialized content within that specific zoner only. So this, yeah, hands on. So आप लोग बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल, उनको भी यूज़ कर सकते हो. मैं तो इन्हीं को सजेस्ट करूँगा. यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन लैब्स हैं, कोर्सेज हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. AWS Educate एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन हैव योर ओन AWS कंसोल विदाउट हैविंग क्रेडिट कार्ड्स. इस पे आप लोग साइन अप करो. इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू टेस्ट थिंग्स, टू लर्न थिंग्स. Further, this is a very amazing resource, that is AWS hands on. Have it bookmarked. So depending on your use case, you'll have lot of AWS hands on labs जो कि basic to advanced जाती हैं, and you can just start implementing those. See, you have a detailed uh, guide how you can create these things. So according to a use case, you can just build these things and use it as your own project. So अपन को as a project showcase करो. So these three basic steps जिससे कि beginner should start learning AWS. So now I was saying about hands-on कि instead of watching videos on YouTube or any Udemy or anything, just start doing hands-on. Then you will get more industry level experience on that. Join multiple hackathons, workshops, and attend events from user groups to get insights from engineers or people who are already doing wonders. Document things. अब लेट से आपने एक बेसिक EC2 इंस्टेंस के बारे में सीखा किसी कोर्स में, देन मैं आपको बोलूंगा कि यू कैन जस्ट हैव अ क्विक लिंक्डइन पोस्ट और यू कैन जस्ट राइट अ ब्लॉग ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट EC2. आपको कैसे आप हाउ यू कैन यूज दैट EC2 इंस्टेंस इन योर यूज केस, या फिर और भी कुछ आपकी एक्सेल या एक्सेप्शनल लर्निंग है या फिर कोई बेसिक लर्निंग भी है, तो यू शुड जस्ट राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन दैट. बट यहाँ पे डाउट आता है लोगों का कि ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है और इसको मैं पोस्ट करूंगा और लोग ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, सो हाउ इट विल मैटर. बट ट्रस्ट मी गाइज, इट मैटर्स आर मोस्ट. लेट्स से आपने आज सिर्फ EC2 का पोस्ट किया, एक वीक बाद आपने ये पूरा जो आर्किटेक्चर हमने बनाया था इसके बारे में पोस्ट किया, उसके बाद आपने एक डेवॉप्स की पूरी आई वुड से हाई अवेलेबल आर्किटेक्चर बिल्ड किया किसी कंपनी के लिए फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हैं. लैम्प स्टैक ऐप प्रोजेक्ट आपने बिल्ड किया. सो यू सी आपका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे. और अगर आप डेली उनको रेगुलर पोस्ट करोगे, सो लेट्स से रिक्रूटमेंट के टाइम पे या फिर जब भी आप किसी जॉब में अप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, किसी को भी पिच करोगे, सो इफ दे हैव वेंट थ्रू फ्रॉम योर लिंक्डइन प्रोफाइल, सो दे विल सी द ग्रोथ कि आपने कैसे बेसिक से स्टार्ट करके एक एक चीज़ें करी है. अगर आप डायरेक्टली ही हैंड्स ऑन पे जाके उन जितने भी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है उनको पोस्ट करोगे, तो आपकी ग्रोथ उसमें ग्रोथ मैप नहीं दिखेगा. So growth map will tell those guys that things are good. How? Just a second. Yeah, sorry. So this guy is having a different approach. They are having, they are being vulnerable. Again, the next part is networking. Make as much as network you can within LinkedIn, within your college, using those events. If you are joining any, ask for help. This is important thing. We'll just discuss a quick things about it in a while. And training and certifications. So does anyone has any query regarding certification कि किसको certificate करना चाहिए? If you want quick reactions. Certification का जरूर लोगों ने सुना होगा. I also get lot of queries regarding certifications की I am in third year, I am in fourth year. अब मैं certifications कर लेता हूँ तो jobs easily लग जाएंगे. So I would suggest if you can afford certification cost easily, then go for it. There is no harm. But
अगर आपका पर्पस यही है सर्टिफिकेशंस के लिए कि यू विल गेट अ जॉब, या फिर आपके दिमाग में है कि इससे इजीली जॉब मिल जाती है, सो इट इज नॉट द केस. व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच इज गो गो विद द सर्टिफिकेशन रोड मैप कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. जैसे कि लेट्स से एक डेवऑप्स इंजीनियर अगर सर्टिफिकेशन देख रहा है, सो यहाँ पे अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं. लेट्स से एसोसिएट लेवल के लिए अगर कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट दिख रहा है, तो गो विद द कंटेंट्स ऑफ द सर्टिफिकेशन की इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एंड देन लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम अवेलेबल साइट्स. अगर आप कोई कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो करो, अदरवाइज एडब्ल्यूएस के भी फ्री कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे कोर्स देखो. एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द सर्टिफिकेशन एग्जाम. बट हाँ, आप अगर टेस्ट कर रहे हो नॉलेज को, तो देर आर लॉट ऑफ फ्री सिमुलेटर्स और साइट्स वेयर यू कैन जस्ट टेस्ट योर नॉलेज. बट इट्स नॉट दैट रिक्वायर्ड कि आप सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे स्पेंड करो. This is one of the interesting site which I would refer, AWS Quest. This is an interactive way to learn AWS. I'll just have a quick view of it. So you guys can just explore this page. What is AWS Cloud Quest, and see, or maybe there's some interactive games using that you can just learn about AWS practitioner or basics things. Okay, then I think that's a wrap. I think I've covered most of the things which are required. Now it's time for FAQ. Feel free to unmute yourself and ask your query, anything related to cloud, relating career, anything. If you guys want to ask, if you have any doubt, you can also type in as well. No queries? Someone has raised hand. Yeah, feel free to unmute. Okay, then if we have no queries, let's quickly move to the quiz. Okay, I'm sharing my screen again, just a minute. As a fresher, how can I become cloud engineer? What skills required? Okay. So in which year you are right now, Priyanka? Yes, sir. Which year you are right now? I am become graduating. Just now I am running Google Cloud Platform. Okay. Okay, you are graduated already. Yes, sir. Okay, so as a fresher, if you want to become cloud engineer, so cloud engineer के roles like cloud architects होते हैं, solution architects होते हैं. अगर वो DevOps से related नहीं है, आप सिर्फ cloud पे करना चाह रहे हो, so basic skills वही मैंने आपको बताया, networking and operating system है. इनको आप पहले prerequisites को करो. वही एक mandatory skills हैं, and accordingly, if you are into building solutions for companies,
इस तरह की जॉब्स आप चाह रहे हो, देन गो फॉर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट रोड मैप और पाथ, और डेवॉप्स एसोसिएट पाथ, डेवॉप्स प्रोफेशनल पाथ। सो वहाँ पे जो भी बेसिक स्किल्स हैं रिगार्डिंग कैसे efficient and reliable solutions you can build on cloud for customers or for your users, you can just plan accordingly. Okay, you can use this John My Quiz link. Let me share that as well and join this quiz. Please join with your real names. Most of the questions will be from the topics which we have seen from today's session. So it will be more better, like it will be a best way to assess yourself what things you have learned today. Let's see. Let's wait for 1 or 2 minutes. Only 13 participants and joined. We are 29 here. Are you guys facing any errors or any issues with joining? Should we start? लोग चलेगा क्या मीटिंग ज्वाइन करके? I guess थोड़े. Nice. Okay, let's start.
Last 15 seconds and we'll just end this. I think everyone, most of the participants is already. Wow. So amazing, Rudra, Vansh, Kshitij. And let's see who are two runner-ups. Congratulations, guys. So we have our top five winners: Rudra, Vansh, Kshitij, Karan, Ashley. So we'll just give them a swag pack. You can just contact Karthik. I'll just collab with him and share those things. Congratulations, guys, and thank you so much for patiently listening to me. I hope you must have got something new today. All the best for your career. Keep learning, keep exploring, keep playing with things, and feel free to reach out if you need any help, any suggestion, any guidance. I'm So, still here. yes, yes. Yeah, please continue, bro. Mhm. So, thank you so much, sir, for this session and all about cloud computing and this quiz. So, guys, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है अभी भी कि कोई पाथ अपना कैसे स्टार्ट करना हुआ क्लाउड पे या फिर AWS पे तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन बाइंड अप कर देंगे. यूज दिस लिंक्स विच आई हैव शेयर्ड. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है. So instead of searching in any third-party platforms, use this AWS official links to start your learning. Highly recommended. Okay, then Okay. I think we can wrap. Thank you so Yes, much, yes. guys. Thank you, sir, and thank you for joining everyone. Bye bye. Bye. Hello, hello. Sir. We can take photo. Hello, hello, hello. Hello. Yeah. Hello, sir. Can we take a photo? Okay, let me stop my screen. Yes. Feel Guys, free to turn जिनको your कोई इशू camera on. यस जिनको कोई इशू नहीं प्लीज कैमरा ऑन कर लो यार.